हेलो फ्रेंड्स, आप सब, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इन टुडेज वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम as provided under section 139. Hi, this is CA Vaibhav Goyal, and in this season, which is beginning season of the return filing, had there been no COVID-19, we all professionals would have been busy with our clients obtaining documents for filing of return of income. In this video, we shall be limiting only to the mandatory requirement of section 139. In the next video, we shall be discussing about rule 12, which prescribes forms and what is the eligibility, what are the requirements, documents required to be collected to successfully file those returns. I have already made a video on the processing of return, but this year the utilities have been changed. How the utilities get to collect more data, we shall be discussing in that video. Okay, now jumping on to section 139. What is section 139 mandating? It is mandating that a company or a firm is required to file return of income irrespective of the fact it has income or loss, whether it is willing to carry forward its loss or not. Meaning thereby, under all circumstances, a company or a firm is required to file return of income, even if they have income exempt under various provisions of this act. Yet they are required to file return of income. Even if they don't have an income chargeable to tax under this act, they are required to file return of income. So, a company or a firm includes LLP. So, these three entities are required to file return of income. Okay. Now comes the second category. This was a general rule number 1. Now we have a general rule number 2. What is the general rule number 2? It says any other person. So, section 2 subsection 31 defines person. So, that clause 31 में जो persons defined हैं उसमें कौन कौन से लोग covered हैं? Company, firm, individual, HUF, AOP, BOI, trust, society, local authorities, AJP. So, हमने जनरल रूल नंबर 1 में कौन सी एंटिटीज कवर करी? हमने करी कंपनी और फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो हमने 3 एंटिटी कवर कर ली। इसके अलावा जो बची है एंटिटीज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, अगर उनकी इनकम इस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम. So, general rule number 2 is any other person. Remember the word person. Alright. So, the legislature in their wisdom has very appropriately used the word person, not assessee. Had the legislature used the word assessee, there would have been litigations. What litigations? That says I am not an assessee. Assessee meaning who is required to pay tax under this act. So, since I am not a person required to pay tax under this act, so how can you mandate me to pay or to file return of income? So, the legislature in its wisdom very appropriately used the term person. So, this is the general rule number 1 and general rule number 2. But as a professional, as a student, you all would be aware. How would you aware that इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल करने की मैंडेट होती है, वो भी सेक्शन 139(1) में ही ऐसा होता है. और अभी जैसे फाइनेंस एक्ट 2019 में भी अमेंडमेंट आया, उसके बाद तो बहुत सारे लोग और भी कवर हो गए. सो द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज द स्पेशल प्रोविजन रूल, मीनिंग देयर बाय जो फर्स्ट 2 रूल जो मैंने जनरल प्रिंसिपल रूल बताए उसमें कवर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न फाइल करने की मैंडेट है. फर्स्ट कैटेगरी कौन से हैं? जो ऐसे रेजिडेंट्स हैं एंड दे होल्ड फॉरेन एसेट और दे आर सिग्नेटरीज इन अ फॉरेन अकाउंट. अब आपका फॉरेन एसेट है और आप कहते हो कि मैं बेसिक एग्जेम्पशन से कम है मेरी इनकम, ठीक है, और फिर भी आप कहते हो यू होल्ड अ फॉरेन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज अ बेनिफिशियल ओनर और यू आर अ बेनिफिशियरी टू दैट प्रॉपर्टी. सो अगर आप या तो बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, सो वो और आप रेजिडेंट हो और आप कहते हो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से इनकम नीचे है, जब बेसिक एग्जेम्पशन जो आपकी 2.5 लाख की इनकम है उससे आप नीचे और आप कहते हो रेजिडेंट हो, तो यू आर बाउंड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. क्लियर? और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी फॉरेन एसेट है तो और आप फिर भी कह रहे हो आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो ये कोई विरोधाभास है. सो देयर मे बी सिचुएशन कि ऐसा हो सकता है, नहीं है,
फिर भी द गवर्नमेंट वांट्स कि भाई आप रिटर्न फाइल करो, और जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो चेक करेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन जो आप क्लेम कर रहे हो ऐसी है या नहीं है, कोई टैक्स एवेजन तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक हो गया ये फॉरेन रेजिडेंट्स की, जब रेजिडेंट्स के बारे में बात हो गई जिनके एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो गए। अब दूसरे कैटेगरी के जो होते हैं, जो दूसरे कैटेगरी के हैं, वो जो नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स में कैसे लोकेशन और एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया नहीं है, लेकिन उनकी जो जीटीआई है वो मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा है, लेकिन डिडक्शंस लेने के बाद, कौन सा डिडक्शन, चैप्टर 6 में 80C की, 80D की या 80IA 80IB, उसकी डिडक्शन लेने के बाद मेरी जो एनटीआई आती है वो लेस देन 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख क्या है, ये जो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे नीचे हो जाती है। तो जब मेरे उससे नीचे हो जाती है तो क्या मुझे वेदर आई एम बाउंड, अगर हम जनरल रूल नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी टोटल इनकम, टोटल इनकम का क्या मतलब है कि सारे डिडक्शंस देने के बाद जो इनकम आई वो देखनी है, तो मैं बाउंड हूं। और कोई ऐसा प्रोविजन के अंडर में डिडक्शन नहीं ले रहा हूं जो मैंडेट करता हो कि इस प्रोविजन का डिडक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप टाइम रिटर्न फाइल करते हो। तो अगर हम उस प्रोविजंस को हटा दें तो जनरल रूल ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करने की बाध्यता नहीं है। तो यहां पे प्रोवाइजो इंसर्ट करा के उन्होंने कहा कि अगर आप 80C 80D या चैप्टर 6A में और भी कोई डिडक्शन है, 80C में मतलब LIC की, ट्यूशन फीस की, 80D में जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की, और भी बहुत सारी जो डिडक्शन हम जो लेते हैं, चाहे 80TTA 80TB जिसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं, 80G डोनेशंस की हम बात करते हैं। आप जैसे कोविड-19 के चक्कर में हम PM रिलीफ केयर फंड में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैंने देखा बहुत सारे हमारे भाई बहन CA फ्रेटर्निटी में बाहर भी सब लोग कोविड-19 की सिचुएशन में गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, सब डोनेशंस कर रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने डेट भी एक्सटेंड कर दी है, अगर आप 31 जुलाई तक इन्वेस्ट करते हैं, PM केयर फंड में डोनेशन देते हैं तो, और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं LIC में आगे एक्सेट्रा में, तो वो आपको बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही मिल जाएगा। और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो शेड्यूल फॉर्म में लाए हैं हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। तो मैं यहाँ जो आपकी अटेंशन लाना चाह रहा था, मैं आपका अटेंशन किस बात पे लाना चाह रहा था, मैं आपका अटेंशन इस बात पे लाना चाह रहा था कि अगर आपके चैप्टर 6A में LIC, ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह की जो डिडक्शन है, उससे पहले जो इनकम है आपकी, वो अगर मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, सपोज आपकी जीटीआई आई 3.5 लाख, आपका 80C का डिडक्शन हुआ कितना 1 लाख, आपकी एनटीआई कितनी आ गई 2.5 लाख, क्या आपकी टोटल इनकम ज्यादा है? नहीं, लेकिन आपकी जीटीआई उससे ज्यादा है 2.5 लाख से। सिंस आपकी जीटीआई 2.5 लाख से ज्यादा है तो क्या आपको मैंडेट है रिटर्न फाइल करने का? हाँ, मैंने जनरली देखा है जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं या वैसे जगह होते हैं जिनकी इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स आ जाती है। कैसे कि मेरे इनकम बिलो 5 लाख है, तो जो टोटल इनकम जो आई वो तो मेरी मोर देन 2.5 है, लेकिन 87A का डिडक्शन लेने के बाद वो भी नील हो गई, तो क्या वो भी मैंडेटेड है? हाँ, उनको भी मैंडेट है। और हम अपने लास्ट पार्ट में या डिस्कस करेंगे कि अगर वो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके ऊपर लेट फी लग जाएगी, दो देयर इज नो टैक्स पेबल टू देम, फिर भी सेक्शन 234F की पेनल्टी उन पे लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि वो कहता है कि दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सो हमें ये टेस्ट देखना है कि वो पेनल्टी कब लगेगी। अगर वो इस सेक्शन 139(1) के किसी भी प्रोवाइजो के अंदर वो कवर होते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइल करना मैंडेट था, और उस मैंडेट के बावजूद भी उन्होंने रिटर्न नहीं भरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टैक्स बन रहा था या नहीं बन रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 87A का रिलीफ लेने के बाद भी अगर टैक्स नहीं बन रहा फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। ठीक है, तो एक पार्ट ही हो गया। अब इसे दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेची, और मैंने उसके बदले दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ और 2 करोड़ के मैंने एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तो क्या हुआ, मेरी कैपिटल गेन क्या टैक्सेबल हुआ? कैपिटल गेन नील हुआ। तो क्या मुझे भी रिटर्न फाइल करने का मैंडेट है? उन्होंने कहा हाँ, आपको भी रिटर्न फाइल करने का मैंडेट है। क्यों? क्योंकि अब जो नया प्रोविजन आया है उसके अंतर्गत अगर आप सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54G, 54GA अगर 50 इन सब में बेनिफिट लेते हैं, अगर आप इन सब में बेनिफिट लेते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स वो चेक करें। हमने एक सिक्योरिटी रिस्क फीचर लगा रखा है, अगर आप उससे ज़्यादा का डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो हम 143(2) में आपकी इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। हम अपनी जो 147 से लेकर 152 की वीडियो जो हमने बनाई है, जो प्रोफेशनल्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसमें देख सकते हैं
कि जो हम रीजंस टू बिलीव हैं और इस रिटर्न की जो मैंडेट है उसकी आपस की क्या इंटरलिंकिंग है, हम उसके बारे में भी उस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि अगर आपकी फॉरेन एसेट हैं और आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो तो आपको रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। अगर आपका चैप्टर 6A में डिडक्शंस हैं और उस डिडक्शंस को इफेक्ट दिए बिना अगर आपकी जीटीआई मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से आती है तो रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। और अगर आपने 54, 54B, 54D, 54G, 54GA एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब के जो कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जो एग्जेम्पशंस हैं उनका अवेल किया है तो और उसका इफेक्ट देने से पहले आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स आ रही है तो बेसिक अमाउंट से ज़्यादा आ रही है तो आपको रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। ये प्रोविजन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कैपिटल गेन वाला क्योंकि अगर हम सेक्शन 45 पढ़ेंगे तो ये जो प्रोविजंस हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इन प्रोविजंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। नॉट चार्जेबल टू टैक्स का क्या मतलब है कि इस प्रोविजंस एक्ट में वो इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कहता है, वो इनकम तो नहीं कहलाएगी लेकिन आपके रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है जिससे प्रॉपर स्क्रूटनी हो सके। अगर स्क्रूटनी प्रोविजंस एलिजिबल हैं और अगर स्क्रूटनी नहीं लेना चाहते गवर्नमेंट के पास अगर सपोज इन्फॉर्मेशन देर से पहुंचती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो 147 में ले सकते हैं और वो 147 में रीजंस टू बिलीव ये रिटर्न ऑफ इनकम बहुत एक कारगर चीज़ साबित हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये अभी 3 चीज़ देखी और अगली चीज़ क्या है जो बहुत ही नया मुद्दा है जो फाइनेंस एक्ट 2019 में आया है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने किसी भी करंट अकाउंट में एक में या सभी में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है किसी बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में, किसी शेड्यूल्ड बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में, ध्यान रहे पोस्ट ऑफिस नहीं लिखा है यहाँ वर्ड, तो हमें ध्यान रखना है अगर किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक में किसी और उसके करंट अकाउंट के फैसिलिटी वाले खाते में हमने 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो हमें रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। तो ये पहले फीचर जो 139 में ये फीचर जो इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेचर ने, क्यों किया, ये इसलिए किया कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ध्यान रहे कैश नहीं अमाउंट, चाहे चेक हो चाहे कैश हो चाहे एनईएफटी ट्रांसफर हो, अगर आपके किसी भी खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिटेड है किसी ईयर में और आप फिर भी कहते हो कि आपकी इनकम बेसिक अमाउंट से नीचे है तो ये संभव कैसे है। 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है तो आप या 44AD में कवर होते तो आप 8% या 6% पे वहाँ पे टैक्स देते प्रेजेंटिव बेसिस पे। आप प्रेजेंटिव बेसिस पे कह रहे हो तो आपकी इनकम जीटीआई उससे ज़्यादा आ ही रही है फिर भी आप कवर क्यों नहीं हो। ठीक है, और आप कह रहे हो नहीं तो आपको ऑडिट कराना था 44AB में, आपने ऑडिट भी नहीं करा रहे तभी तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप ऑडिट कहते कि मेरी इनकम जो है 6% का प्रॉफिट नहीं है 8% का प्रॉफिट नहीं है सो 44AB क्या कहता है आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने, आपने अपना अकाउंट्स भी ऑडिट नहीं कराया। आप एक तरफ कह रहे हो कि आप 44AD में कवर नहीं हो एक तरफ और फिर कह रहे हो कि आपने अपने अकाउंट ऑडिट नहीं कराए तो उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करने की मैंडेट है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपने ऐसा कौन सा प्रोविजन है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स ही ना हो, कैसे आप सेक्शन 10 के किसी प्रोविजन में कवर हो और उसमें ऑडिट कराने की मैंडेट ही ना हो, है नहीं, तो वो गवर्नमेंट वो कहती है कि अगर आपके खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट है तो आप रिटर्न फाइल करिए और हम चेक करेंगे कि भाई आपको किस प्रोविजन में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो। ठीक है, और वो प्रोविजन कैसे हो सकते हैं, जैसे हम एक क्लब हैं सभी मेंबर्स ने अमाउंट डिपॉजिट किया 5-5 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये, कोऑपरेटिव आपके RWAs जो हैं वो करंट अकाउंट होती हैं, वो RWAs में क्या होता है बिल RWA जमा करती है टोटल और सभी सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स सभी पैसे जमा करते हैं उस RWA के खाते में, तो आपके खाते में डिपॉजिट तो ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। अब आपको रिटर्न फाइल करने का मैंडेट है, आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। और आप क्यों नहीं फाइल कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो इनकम जो है वो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, क्योंकि वो सेक्शन 2 की जो इनकम की डेफिनेशन है उसके ही बाहर है। बिल्कुल ठीक है, तो सरकार कहती है ठीक है कोई बात नहीं आपकी इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स ही रहेगी, लेकिन आप रिटर्न फाइल करिए ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है कोई भी स्क्रूटनी करनी है उसके लिए और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके पास प्रॉपर डाटा हो और प्रॉपरली हम स्क्रूटनाइज कर सकें। और कई बार क्या होता है हम अननेसेसरीली 147 में ले लेते हैं केस, तो कहते हैं अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है और वहाँ से लिंकिंग होके वो 147 में ना सेलेक्ट हो, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो, उसमें भी ये प्रोविजन हेल्प करेगा। अब सवाल उठता है कि मेरे 2 बैंकों में खाते हैं अलग अलग करंट अकाउंट, एक में 50 लाख एक में 50 लाख, तो क्या मेरे को दोनों में जोड़ के 1 करोड़ की लिमिट देखनी है
या किसी एक बैंक में। मैं जितना समझता हूँ गवर्नमेंट की और लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी कि आपके टोटल डिपॉजिट, चाहे किसी एक बैंक में हो, किसी एक दो बैंक में हो, किसी एक ब्रांच में हो, ऑल टोटल, चाहे बैंक में हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, टोटल अगर आपके किसी भी करंट अकाउंट में, ऑल करंट अकाउंट्स में जोड़कर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आता है तो आपको रिटर्न फाइल करने की मैंडेट है। हाँ, ध्यान रहे, पोस्ट ऑफिस की अगर करंट अकाउंट फैसिलिटी है तो आपको इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर की इंटेंशन तो थी लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, तो हम क्या समझ सकते हैं कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। सो इट इज वेरी मच क्लियर नाउ कि भाई अगर आपके सभी खातों में ऑल करंट अकाउंट्स टेकन टुगेदर। नाउ द सेकंड प्रोवाइजर, जो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर आपने किसी के लिए, खुद के लिए या किसी के लिए भी फॉरेन ट्रैवल का खर्चा किया हो, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल का खर्चा किया हो और उसका अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा का हो तो आपको रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरी साल की टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो आप, दूसरी तरफ कह रहे हो कि मैंने बाहर जाने के लिए 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा करा, तो इनकम आई कहां से? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी पुरानी सेविंग हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार कहती है कि हम कैसे देखें कि भाई आप कि आपने जो पुरानी सेविंग से खर्चा करा है, कहीं आपका ये 2 नंबर का पैसा तो नहीं, कहीं आपने कोई इनकम को छुपाई तो नहीं, आप बाहर गए, फॉरेन ट्रैवल गए, जब आपने फॉरेन ट्रैवल किया तो उससे मेरे को जाने आने का खर्चा देखना है या वहां रहने का खर्चा देखना है? मुझे वहां रहने का खर्चा भी देखना है। ठीक है, इंटेंशन क्या है कि जब आपने फॉरेन ट्रैवल पे पूरा खर्चा किया खुद के लिए या किसी और के लिए, और फिर भी आप कहते हो कि भाई आपकी इनकम बिलो चार्जेबल टू टैक्स है, तो हम देखना चाहेंगे। इसमें देखने वाली बात क्या है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम 3 लाख है, वो भी कवर है, और कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, उसकी बेसिक अमाउंट कितनी छूट है? 5 लाख। अगर उसकी बेसिक अमाउंट 5 लाख है और 2 लाख रुपए खर्च भी कर रहा है खुद के लिए या अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, तो उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन फिर भी अब वो सुपर सीनियर सिटीजन, उनको फाइल करने की बाध्यता हो गई है। अब हम तीसरे इशू में आते हैं। तीसरा इशू क्या है कि भाई आपने बिजली का खर्चा, यू हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल और इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सीडिंग ₹1 लाख और मोर। ठीक है जी, अब क्या हुआ, आपने खुद के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा किया वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कर दिया तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो इनकम कहां से आई आपकी? 1 लाख रुपए की, और आप कह रहे हो आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। आप बिजनेस चला रहे होगे, बिजनेस चला रहे होगे तो आपने रेवेन्यू कमा रहे होगे, तो रेवेन्यू कमा रहे होगे तो 1 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने एक जनरल इकोनॉमिक पैरामीटर फिक्स किया कि भाई जो व्यक्ति 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर सकता है उसकी इतनी इनकम तो होगी कि वो बेसिक अमाउंट से ज्यादा हो और चार्जेबल टू टैक्स हो। लेकिन फिर भी आप क्लेम कर रहे हो नहीं है। कैसा संभव है? ऐसा संभव है अगर वो जो बिजली का मीटर है वो आपकी वाइफ के नाम है या आपकी मदर के नाम है। दो कौन पे कर रहा है? हस्बैंड, आप खुद पे कर रहे होगे या आपके फादर पे कर रहे होंगे, लेकिन मीटर किसके नाम है? आपकी वाइफ के नाम या आपकी मदर के नाम। तो क्या आपकी वाइफ और आपकी मदर उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेट है? तो उनके लिए भी ये मैंडेट है। क्यों? क्योंकि वो मीटर उनके नाम है। तो जब रेवेन्यू ऑफिसर सेलेक्ट करेगा उनकी रिटर्न स्क्रूटनी में तो आपको साबित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई ये मैंने ये मीटर इनके नाम लिया। ये मीटर इनके नाम लेने का क्या कारण हो सकता है? या तो आपने किराए पे मकान लिया है, उनके नाम रेंट एग्रीमेंट है, या उनके नाम अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो वो उसकी ओनर है। जब वो उसकी ओनर हैं तो उनके पास इनकम कहां से आएगी वो उनके नाम प्रॉपर्टी खरीद सकें? कैसे आ सकती है? ऐसे आ सकती है कि हस्बैंड ने पैसा दिया हो या फादर ने पैसा दिया हो, ओके कोई बात नहीं, लेकिन आपने वो मकान रेंट पे भी दिया है कि नहीं दिया है, उससे अगर कोई सेक्शन 22 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम एडिशन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, वो सब भी चेक किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश है, जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे इंटरलिंकिंग है जो गवर्नमेंट इन प्रोविजंस के थ्रू करना चाहती है। ठीक है, तो क्योंकि 1 लाख का बिजली का बिल उन्होंने हिसाब लगाया साल में, तो एक गुड अमाउंट ऑफ रेंट उससे अर्न हो सकता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि वो बिलो चार्जेबल टू टैक्स है, हो सकता है क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस भी वो इन्वोक करना चाहें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेट है। अगर हम रिकैप्चुलेट करें तो कौन कौन लोगों को रिटर्न फाइल करना है? कंपनी, फर्म और
बाकी लोग जिनकी आय बेसिक अमाउंट से ज़्यादा है, और अब वह लोग जो बेसिक अमाउंट से नीचे क्लेम करते हैं लेकिन फिर भी उनको मैंडेट है। कौन कौन से लोग? ऐसे रेजिडेंट्स जो कि बाहर एसेट ओन करते हैं, किसी फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी हैं, वो लोग। ऐसे लोग जो कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 54, एक हाउस प्रॉपर्टी के बजाय दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ले ली, एक एग्रीकल्चर लैंड के बजाय दूसरी एग्रीकल्चर लैंड ले ली, आरईसी के या एनएचआई के या नोटिफाइड बॉन्ड्स ले लिए, वो लोग जो इन प्रोविजंस में एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, वो लोग जो चैप्टर 6A में डिडक्शंस क्लेम करते हैं और फिर भी उनकी इनकम बेसिक अमाउंट से ज़्यादा आती है उसके डिडक्शन देने से पहले, तो वो लोग। और वह लोग जिनके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है, ध्यान रहे कैश नहीं, टोटल डिपॉजिट, चाहे चेक या कैश या एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, कुछ भी। और वैसे लोग जो फॉरेन ट्रैवल पे खुद के लिए या किसी के लिए 2 लाख से ज़्यादा खर्चा करते हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा करते हैं, तो इन लोगों के लिए मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। और अगर इसमें साथ में ये भी प्रोविजन है, जो अगर सीबीडीटी कोई और नोटिफाई करती है कुछ और लोगों को, तो वो भी फाइल करना है। तो इस अदर प्रोविजंस की वजह से एक सब लेजिस्लेशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। नाउ कम्स कि हमने अब रिटर्न फाइल कर दी। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो लॉस में हैं। अब लॉस में है तो अब क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है? बिलो चार्जेबल टू टैक्स है। उन्होंने कहा अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा लॉस हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में है, अगर मेरा लॉस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का है, तो अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं भी करता हूं या टाइमली फाइल नहीं भी करता हूं तो भी मुझे वो मिलेगा। लेकिन मुझे ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं टाइमली फाइल नहीं करूंगा, मैं अगर फाइल ही नहीं करूंगा, तो मेरी स्क्रूटनी असेसमेंट्स और वाकई असेसमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे जिसके बेसिस पे मैं ये एविडेंस साबित कर सकूं। जब मैं किसी चीज़ को साबित नहीं कर पाऊंगा तो वो मेरे लिए, मेरे हित में नहीं होगी। तो आपके हित में है, चाहे लॉस में हो तो भी रिटर्न फाइल कीजिए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लॉस रिटर्न के बारे में। लेकिन अब मैं डेडलाइन भूल गया, मैं डेडलाइन को पार कर गया, तो क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? हाँ, मैं रिटर्न फिर भी फाइल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस पेनल्टी का नाम है सेक्शन 234F, जिसमें वो फीस कहते हैं। अब यहाँ सारे इशू उठता है कि मेरे को रिटर्न फाइल करने की बाध्यता थी, लेकिन मैंने रिटर्न फाइल इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं बनता। तो क्या मेरे से आप फीस कलेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जैसे मैंने अपने पहले कुछ वाक्यों में बताया था कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है। क्यों? क्योंकि आपने कहा आप फीस क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? आप फीस इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हो ताकि आप एक अपने बजट के फाइनेंसेस को मैनेज कर सको, ठीक है। आपने यही तो कहा, मेरा टारगेट इतना था रेवेन्यू कलेक्शन का, मेरे इतना एक्सपेंडिचर का था, और जब मैं अपने रेवेन्यू की बात करता हूं तो क्या मैं अपने रेवेन्यू को मीट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? तो आपके लिए एक फैसिलिटी थी रिटर्न फाइल करना, तो अब वो फैसिलिटी मैं रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको नुकसान हुआ। तो आपने कहा ये फैसिलिटेशन फीस है, जो मेरा बजट मिसमैनेज हो रहा है उसके लिए फैसिलिटेशन फीस है। तो अब जब मेरे को कोई टैक्स पे ही नहीं करना, फिर भी आप कह रहे हो कि मेरे पे 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, वेदर इट इज वैलिड इन लॉ। क्यों? क्योंकि आपका कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं, तो किस बात की फीस, किस बात का कंपनसेशन? तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन फीस कितनी होती है? सिर्फ उसमें 1000 रुपए। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस 1000 फीस के लिए, जस्ट फॉर 1000। ये कोई 234E की तो फीस नहीं है टीडीएस वाली कि भाई 200 रुपये पर डे लगे जा रही है, फलाना लगे जा रही है। लेकिन ये सिर्फ 1000 रुपीज़ की है। तो आई डोंट थिंक सो पीपल वुड, एडवोकेट्स वुड गो फॉर कि भाई जहाँ पे टैक्स ही नहीं बन रहा वहाँ पे 1000 रुपये की फीस कलेक्ट करी जा रही है, विच इज़ इन माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, विच इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ द लॉ, विच कैन नॉट बी। लॉ भी कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में जब तक आपको कोई लॉस नहीं है तो आप क्यों फीस कलेक्ट कर रहे हैं ऐसी? तो आई फील गवर्नमेंट को इस पर दोबारा सोचना चाहिए, और कोविड-19 की सिचुएशन में तो दोबारा सोचना चाहिए कि जिनको टैक्स नहीं बन रहा जिनकी टोटल इनकम पे, ठीक है, तो उनको मैंडेट ना करा जाए कि भाई आप फीस भी दें। ऑलराइट, नाउ कम्स कि अब रिवाइज कब तक करी जा सकती है? रिवाइज करी जा सकती है जब सपोज मेरा असेसमेंट ईयर 2021 है, तो ये रिवाइज कब तक करी जा सकती है? 31 मार्च 2021 तक। और कब तक बिलेटेड फाइल हो सकती है? 31 मार्च 2021 तक, या जब तक मेरा असेसमेंट पूरा हो। बाकी इसके रिलेटेड इश्यूज मैंने अपनी
पहली वीडियो में जो 143(1) की प्रोसेसिंग है उसमें भी कुछ बातें रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न के संदर्भ में करी हैं, तो आप उसको भी देख के लाभान्वित हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने इस वीडियो में अपनी कौन कौन से लोगों को मैंडेट है सेक्शन 139 में ब्रॉडली ज़्यादातर लोगों को कवर कर दिया है। अगर कोई ऐसे पर्सन्स रह गए हों जिनके बारे में मैंने जिक्र ना किया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी ईमेल पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने आखिर तक देखी होगी। अगली वीडियो में हम रूल 12 के बारे में बात करेंगे, फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ते हुए कैसे असेसमेंट और रीअसेसमेंट में पैरामीटर्स में कहाँ कहाँ कवर हो सकते हैं उस बारे में भी हम जिक्र करेंगे। आशा करता हूँ आप सब सेफ और हेल्दी रहें। प्रार्थना करता हूँ कि सब 2020 की में जो आपदा आई है वो धीरे से चली जाए, हम सब सुखद रहें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।